So first of all, congratulations everyone for clearing the entrance exam as in the written part. So only the last leg is left now, that is the interview process. So I don't know if should I continue in English or can I use both English and Hindi? If somebody can confirm, like, are you comfortable in Hindi or not, or should I just go ahead in English only? Sir, in Hindi. Okay, so both, like, right. Okay, cool. Cool. I'll keep it bilingual, right? So, firstly, what I was thinking that the interview process in Jamia as well as in CSE, they're somewhat the same. Okay, the same. Like when I say that they're somewhat the same, which means that they follow the same guidelines. So, firstly, I'll talk about those guidelines, mostly the qualities that they are looking for. After that, I'll talk about that what are the important topics that you should prepare for this interview. And then I'll also talk about a few things like what should be the attire, and I'll also give you some tips, right? And then we can have a question answer session also at the end. So now I'll get started. So firstly, if I talk about the qualities that they are actually looking for, so that includes your mental alertness. Now, when I say mental alertness, so I'll club it with your DAF. So, for example, your name. So let's say that if your name is a very common one, okay, or maybe if it's a very unique name, then maybe that can be the point of conversation, right? They can start the conversation from that point itself, right? If you have a unique name, or let's say if you have a very common name. So in that case, what will happen that they will ask you that, okay, since you have this name, so tell us five famous personalities with the same name. They can ask that. So just to check your mental alertness. Then at the same time, your date of birth. For example, I was born on 23rd June. So now 23rd June is the date of Battle of Plassey. So similarly, if you have to see the day that you were born on, like the date that you were born on, so वहाँ पर कुछ important event हुआ था क्या, international event हुआ था क्या, या फिर कोई national event हुआ था क्या, तो that you should check, right? Because वो क्या होगा, वो आपकी mental alertness को दिखाएगा. Then other than that, the other quality that they are looking forward to is your critical power of assimilation and clear and logical expression. So now the thing is whether you are able to contemplate things well or not, whether you are able to understand things well or not. तो उसके लिए आपको क्या है, आपको एक active listener होना बहुत जरूरी है कि सामने जो बोर्ड में member हैं वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, what they are actually trying to ask you, what they actually want to know. तो for that you have to be an active listener. तो आपको actively सुनना है, पूरी concentration के साथ सुनना है, और फिर लॉजिकली अपनी बात को आर्टिकुलेट वे में उनके सामने रखना है, ठीक है? तो वो हेल्प करेगा आपको क्लियर एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन देने में. Then the next quality that they are looking forward is your balance of judgment. Now balance, देखो एक बात that I'll say कि it's not just about जामिया का entrance. मैं in general UPSC journey में भी आपको पूरी ये बात बोलूँगा कि हर एक stage पे balance is the key. UPSC में balance is the key. Be it your prelims, your mains or your interview. तो अगर आप अपनी judgment को balance रखोगे तो आप बहुत दूर तक जाओगे इस journey में, ठीक है? So now the thing is, अब बहुत ज़्यादा extreme आपको कोई stand नहीं लेना है किसी भी चीज़ पर. For example, if they're asking you regarding कोई भी current event है, तो आपकी मे भी हो सकता है कोई भी आइडियोलॉजी हो, कुछ भी हो, आपका कुछ जो पर्सनल आप बिलीव करते हो अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, दैट कैन बी एनीथिंग, बट यू डोंट हैव टू बी वेरी एक्सट्रीम. सो वी हैव टू ड्राइव आवर आइडियोलॉजी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्री में रहकर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को आगे रखकर यू कैन टेक एनी स्टैंड, बट डोंट बी वेरी एक्सट्रीम. बैलेंस इज द की, ठीक है? तो बैलेंस आपको बना के रखना है. Then after that, variety and depth of interest. Now यहाँ पर जो important role आएगा वो आपकी hobbies and interest का आएगा. तो जब आपका जामिया का एंट्रेंस का फॉर्म हुआ होगा तो उसमें दे मस्ट हैव आस्क्ड यू अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा. तो उन हॉबीज को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मोस्टली जो आपका इंटरव्यू होगा वो हॉबीज के अराउंड हो सकता है, ठीक है? अगर बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी है या फिर आप उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में पुट करते हो. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आई लाइक टू ट्रैवल, सो आई ट्रैवल अ लॉट. तो ट्रैवल इज माई हॉबी और मैं उसको जेन्युइनली करता हूँ, तो मैं उसके बारे में बहुत पैशनेट होकर बात कर सकता हूँ. तो अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है दैट यू हैव मेंशन्ड एंड यू वांट देम टू आस्क यू और वो नहीं पूछ रहे, तो आप इस तरीके से अपनी बात को अपनी कन्वर्सेशन में आप उसको लेकर आ सकते हो, ठीक है? सो दैट दे आस्क यू ऑन दैट टॉपिक, ऑन पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू वांट टू टॉक टू, ठीक है? तो कुछ एरियाज होंगे यहाँ पर जो आपको लगता है कि यू आर मोर कंफर्टेबल इन दोज एरियाज, जो आपका फोर्टे होगा. तो
ट्राई करो कि आप उस कॉन्वर्जेशन को उस एरिया तक लेकर आ सको, ठीक है। तो अगर जैसे मेरा भी जब इंटरव्यू था, जैसे यूपीएससी का मेरा अगर इंटरव्यू था, तो मैं कोशिश करता था, मैं ट्राई करता था कि जो डैफ में मेरे जो टॉपिक्स हैं, जो जिनमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ या जो मैंने किया है, मैं कोशिश करूँ कि जो बोर्ड है मैं उसका अटेंशन उन टॉपिक्स के ऊपर लेकर आ सकूँ, ठीक है। तो अगर आप उस कन्वर्जेशनल रखोगे अपने इंटरव्यू को, तो बहुत मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, बोर्ड को भी मजा आएगा, और वो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेगा, आपको मार्क्स भी वो अच्छे देंगे, ठीक है। तो अपनी जो हॉबीज एंड इंटरेस्ट हैं जो आपने उसमें लिखे होंगे डैफ में, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। उसके बारे में देख लेना, मोस्टली मतलब ऐसे कुछ बुकिश या थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं देखना, बट ये मोस्टली देखना कि आप क्या करते हो, व्हाट यू लर्न फ्रॉम देम, राइट। सो हाउ दे हेल्प यू ग्रो एज अ पर्सन, आपकी कैसे पर्सनालिटी एनहांसमेंट होती है, आपकी कैसे हाउ दैट मेक यू अ बेटर पर्सन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Then after that, ability of social cohesion and leadership. Now यहाँ पर क्या हो सकता है कि वो आपको मे बी मतलब इन सम केसेस वो आपको कोई लीडरशिप या फिर कोई सिचुएशनल क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, और वहां पर आपकी लीडरशिप एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जांपल मुझसे जब मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था अभी सीएससी का, तो उसमें उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर मुझे इफ दे मेक अस द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एंड आई हैव टू डू द बजटिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट दैट आई हैव बीन पोस्टेड इन, तो हाउ विल आई डू इट। तो मैंने उनको बोला था कि मैम शी वाज अ लेडी मेंबर जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उनको बोला था कि मैम एक तो मतलब आई विल डू कंप्लीटली पहले पूरा थॉरो एनालिसिस करूंगा कि व्हाट इज द नीड, बट उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में नीड किस चीज की है और वेदर इट्स एन एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट और नॉट, एंड देन अकॉर्डिंगली जो बजटिंग है दैट विल बी कैरीड आउट, बट एट द सेम टाइम आई विल टेक केयर ऑफ द फार्मर्स, एजुकेशन, वुमेन एंड ऑल द वल्नरेबल सेक्शंस। देन शी पर्टिकुलरली आस्क्ड मी कि अच्छा उस केस में क्या होगा, वहां पर तो एमएलए भी होंगे, एमपी भी होंगे, तो वो आपसे बोलेंगे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको ज्यादा पैसे दो। तो मैंने बोला कि मैम मैं देखूंगा कि अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सच में अगर नीड है, जरूरत है, तो डेफिनेटली आई विल, अदरवाइज जो ये जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके ऊपर तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो उन्होंने बोला कि इन दैट केस यू विल बी ट्रांसफर्ड। मैंने कहा आई विल एक्सेप्ट ट्रांसफर, ठीक है, आई विल एक्सेप्ट बीइंग ट्रांसफर्ड, बट मैं जो है अपनी वैल्यू से नहीं हटूंगा। तो द थिंग इज कि वो आपको लीडरशिप क्वालिटीज में जज करने के लिए आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन में डाल सकते हैं। तो उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज योर इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटेग्रिटी। सो इंटेलेक्चुअल मॉरल इंटेग्रिटी कैसे जज होगी आपकी, वो होगी कि आप सच बोलो उनके सामने, ठीक है। इफ यू नो समथिंग से इट, इफ यू डोंट नो एनीथिंग से इट, ओके, यू डोंट हैव टू ब्लफ। इन केस इफ यू नो partially about something, so you maybe can ask them that okay ma'am or sir can I take a guess, and if they allow then definitely take a guess. If you know something, say it. नहीं आता, सबको सब कुछ नहीं आता, say it clearly that I don't know, I'll read about it, that's it. Okay, and then the last topic is your interest in current affairs. Now interest in current affairs, see the current affairs also play a very important role किसी भी इंटरव्यू में। तो अब जो आपका जामिया में बोर्ड होगा उसमें एक या दो मेंबर तो ऐसे होंगे जो आपसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो जो भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं आप उनको देखो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज दे हैव बीन इन न्यूज एंड दे सो ये सब अगर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं तो दे ऑल फॉलो इट, तो वो सब उनको पता ही होता है ज्यादातर। फिर नेशनल इश्यूज से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स है, ठीक है, जैसे सीजेबी प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर और सारी चीजें हैं, तो उनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है रीड अबाउट देम। एंड देन एज आई सेड अगेन के बैलेंस इज द की, ठीक है। तो आपको बैलेंस बना के रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक दायरे में रहकर सारी बातें जो है आपको बोलनी है, डोंट बी वेरी एक्सट्रीम व्हेन इट कम्स टू योर ओपिनियन। इफ दे आस्क योर ओपिनियन ऑन पर्टिकुलर करंट अफेयर के लिए व्हाट यू कैन डू, I don't know जो सर गाइडेंस प्रोग्राम देते हैं उसमें if there is a segment for current affairs or not, but in that case what I used to do कि मैं PT करता था, ठीक है, तो या मेंस 365 या PT 365 मैं उनको देख लेता था ऊपर से, तो मुझे मेजर करंट जो इश्यूज हैं वो करो। एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर you should read every day, मतलब I hope that you people must be reading since you are preparing for CSE, तो एक न्यूज़पेपर को आप डेली रीड करो, वो जो इंडियन एक्सप्रेस है, I used to do that। उससे आपका ओवरऑल जो करंट अफेयर्स है वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आई वुड लाइक टू टॉक। सबसे पहले तो जैसे मैंने ये वाली सारी बात तो कवर हो गई, नाउ आई टॉक अबाउट डाफ, ठीक है। तो जो आपका जो डाफ है उसमें जैसे मैंने कहा पहले कि अपने नाम से रिलेटेड आप चीज़ों को प्रिपेयर कर लो,
कि आप का नाम जो है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ योर नेम, और इफ इट्स अ यूनिक नेम देन सम पर्सनालिटीज रिगार्डिंग दैट, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें अपने आप से रिलेटेड भी प्रिपेयर करो, डू योर स्वॉट एनालिसिस, ओके। अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करो कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव, देन द थ्रेट्स दैट यू फेस। तो अपना स्वॉट एनालिसिस करो, ठीक है। उसके बाद एज आई सेड योर डेट ऑफ बर्थ, तो इफ यू वर बोर्न ऑन अ पर्टिकुलर डेट और उसमें कोई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल नेशनल इवेंट हुआ था या कोई इंपॉर्टेंट डे है वो, तो जस्ट read about that. Maybe they can ask just to check your mental alertness. Then comes your state, okay, the state that you come from, okay. So maybe if someone's from Kashmir, someone's from Delhi, somebody from Bihar or Tamil Nadu, so these different states will have different problems, different issues. तो आप उन सबको देखना, उनके बारे में देखना कि what are the problems or what are the issues that your states have, और उसके अलावा for example let's say करना, तो मे बी दे कैन आस्क यू कि ओके इफ आई कम टू योर स्टेट तो कौन कौन से ऐसे 4 प्लेसेस हैं जहाँ पर आप मुझे लेकर जाओगे, तो उसको भी आप इसमें कवर कर सकते हो। एंड फॉर फीमेल्स आई वुड से कि वो यूजुअली पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस हियर। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर अ व्हाइल, सो दे कैन आस्क यू दैट ओके व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस हियर इन दिल्ली एज कंपेयर्ड टू द चैलेंजेस दैट यू फेस इन योर होम टाउन, मे बी दे कैन आस्क यू दैट एज वेल। देन अपने स्टेट का भी स्वॉट एनालिसिस कर लेना। उसके बाद योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सो जामिया का जो पैनल होता है उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, बट कुछ प्रोफेसर्स भी होते हैं या यूनिवर्सिटी के। तो मे बी अगर किसी प्रोफेसर का कुछ हुआ, कोई इंटरेस्ट हुआ आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में, तो मे बी दे कैन आस्क, तो अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को भी देख लेना। मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में भी मत जाना, बट थोड़ा सा just know about it. Then your institution, the institution that you come from, तो maybe जो भी आपका institution है, जो भी जहाँ से भी आपने अपना 10th किया है, 12th किया है या अपने ग्रेजुएशन मास्टर्स किया है, तो उन सबको भी थोड़ा उसके बारे में भी देख लेना। Then another important topic is your optional, okay. So जो आपका CSE में जो optional है उससे related they ask questions. तो like if I'll say most common जो options होते हैं वो anthropology है, sociology है, political science, international relations है। तो ये ऐसे topics हैं जो मतलब interesting भी हैं, तो कुछ ना कुछ लोगों को इनके बारे में पता ही होता है थोड़ा बहुत, तो अपने optional को भी आप देख लेना, है ना। और उसमें जो interesting topics हैं जैसे sociology में society या sensitization या caste system, ये सब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देख लेना, जो बहुत ऐसे important और बहुत interesting kind of topics होते हैं। और PSIR अगर ऑप्शन है तो फिर जस्ट बी रेडी कि इंटरनेशनल रिलेशंस तो फिर पूछेंगे वो आपसे, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में भी हो सकता है कि वो आपसे थ्योरीज थोड़ी बहुत पूछ ले, ठीक है ना। वही थोड़ा बहुत उनको बेसिक पता होता है, सबको वही थोड़ा आइडिया होता है उससे रिलेटेड। ओके, देन योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट आई टॉक्ड अबाउट कि अपनी हॉबीज को, इंटरेस्ट को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मोस्टली जो आपका डाफ के अराउंड ही रहने वाला है, तो हॉबीज से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। तो जो भी आपकी हॉबीज हैं उसको आप प्रिपेयर कर लो, बट यू एक्चुअली लर्न फ्रॉम देयर। और उसमें भी ना कोशिश आप ये करना कि मतलब इसको कम मैकेनिकल बनाना, जो मैकेनिकल एज इन कि जैसे मैंने आपसे भी कुछ पूछा अबाउट योर हॉबी और समथिंग, तो ऐसे मतलब if they for example they say that what you learn from traveling, ठीक है, if they ask me that, so I can easily say कि अच्छा I learn leadership qualities from this or adjustability या फिर, ठीक है। तो but the thing is अगर मैं उसको किसी अपने एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन करूँगा ना, that would look even much better, ठीक है। तो if I explain it with some experience that I had, तो मैं बोल सकता हूँ कि for example let's say if I went on a trek, I went to this Chandratal का trek, तो maybe I can say that I was leading the trek, तो वहाँ पर what I learned about this leadership qualities, I learned about कि कैसे how do we have to manage और rationing कैसे करनी है हमें, हम ऐसे adjust कैसे कर सकते हैं, ठीक है, how to be accommodative, तो ये सारी चीज़ें that I learned from there. So if I make it more about myself, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। You become the center of discussion, ठीक है। Okay. Other than that, current affairs I've already talked about. उसके बाद I don't know कि वो जामिया के जो फॉर्म है उसके अंदर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन वगैरह होती है या नहीं, बट इन केस अगर होती है तो जस्ट थोड़ा सा ब्रीफली बस देख लो। अगर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे ऑक्यूपेशन है दैट योर पेरेंट्स आर इनटू, तो फिर आप उसको देख सकते हो, बट मोस्टली तो they will not ask. Then after that another thing that I'll talk about is your attire, कि क्या पहनना चाहिए आप जब किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो। तो see it's a formal event, तो आप एक्सपेक्टेड है कि आप फॉर्मल्स ही पहनो, ठीक है।
अब गर्मी है तो सूट वूट मत पहनना, सूट पहनने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट मील्स लाइक, तो बट यू कैन वेयर ट्राउजर्स और आप जो है शर्ट पहन सकते हो, ठीक है, ट्राउजर्स और शर्ट पहन सकते हो, दैट्स मोर देन इनफ। और फॉर फीमेल्स मे बी दे कैन वेयर अ साड़ी और मे बी अ सूट, और वो भी ट्राउजर्स और शर्ट पहन सकते हैं, इसमें कोई देयर इज नो बार इन दैट एज वेल, ठीक है। बट देन एट द सेम टाइम ट्राई टू बी वेरी आर्टिकुलेट और बी वेरी क्लियर, ब्लफ मत करना। इफ यू डोंट नो एनीथिंग से दैट आई डोंट नो इट, ओके, एंड मूव ऑन, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जस्ट कुछ चीज़ें मैं कहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँगा कि यार आप ट्राई करो कि आप RCA आ जाओ, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस। I came to RCA on 1st October 2024 और 6 March 2026 को मेरा सिलेक्शन हो गया। तो बिकॉज आई यूटिलाइज दैट प्लेस वेल, तो आप कोशिश करो अपने इंटरव्यू अच्छे से दो और कोशिश करो कि आप जो है RCA आ जाओ। इट्स अ वेरी गुड प्लेस, क्योंकि वहाँ पर आपको एटमोसफियर बहुत अच्छा मिल जाता है पूरी तैयारी को लेकर, और आपकी CSE की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। अदर देन दैट कुछ लोग स्टेट सर्विस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो एक अच्छा ग्रुप बन जाता है। एंड अनदर थिंग दैट आई से कि व्हेन यू कम टू RCA, तो मतलब डोंट गेट कैरिड अवे। RCA आके आपको उसको यूटिलाइज करना है, आपको पढ़ना है, क्योंकि RCA आने से मतलब ये नहीं है कि एग्जाम क्लियर हो गया है। मेन एम तो हमारा है कि हमें CSE निकालना है, ठीक है। तो RCA को आने के बाद, RCA में आने के बाद आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज या फिर जो सारे रिसोर्सेज आपको वहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। नेटवर्किंग आप अपनी अच्छी करना, अच्छे से पढ़ना और सोशलाइज कम करना, मतलब अच्छा ग्रुप बनाना, कम लोगों का ग्रुप बनाना और पढ़ाई करना। ज़्यादा लोगों से मत मिलना, यूनिवर्सिटी में मत घूमना, मोस्टली पढ़ाई पे फोकस करना, क्योंकि फिर उसके बाद आपको सोशलाइज करने का टाइम ही टाइम है। मतलब जब से मेरा एग्ज़ाम रिजल्ट आया है तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ सोशलाइज ही कर रहा हूँ। तो जो भी पिछले 3-3.5 सालों में मैंने ज़्यादा सोशलाइज नहीं किया, मैंने बाहर नहीं किया, मैंने पार्टी नहीं की, मैंने ट्रैवल नहीं किया, वो सब इन 4 महीनों के अंदर हो गया। तो दैट रियली हेल्प्स। तो इसलिए सोशलाइज लेस और अच्छे से इसको यूटिलाइज करना। बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कोई क्वेश्चन है तो आई एम हैप्पी टू हेल्प, प्लीज आस्क। और उसके अलावा भी अदर देन दैट मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है, आप मुझे उस पर आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, एक एक करके सवाल पूछे। सर ये इंटरव्यू से तो रिलेटेड नहीं है सर, ये मेंस के नोट मेकिंग से रिलेटेड है। अभी जुलाई से दिसंबर तक जो मेंस का नोट मेकिंग है उसका बेस मटेरियल सर आपका क्या था? ओके फिर से आप क्या कह रहे हो कि मेन से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब एज इन जुलाई से लेके व्हाट? जुलाई से लेके दिसंबर तक सिलेबस वाइज, पॉइंट वाइज जो नोट्स बनाना है, उसके लिए आपने आपका बेस मटेरियल क्या यूज किया था? मैं एक कोचिंग का बेस मटेरियल जो है, कोचिंग का नोट्स लेके उसको कंसाइज करके उसमें वैल्यू ऐड विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल से उसको वैल्यू ऐड करूंगा, तो ये सफिशिएंट हो जाएगा या और उससे ज्यादा कुछ करना पड़ेगा? सी द थिंग इज, देखो, जब सबसे पहले तो अगर आपने अपना बेस जो है वो तैयार कर लिया है तो दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। फाउंडेशन के बाद नाउ द थिंग इज वैल्यू एडिशन पर ही बात आती है, तो वो आप वैल्यू ऐड कर रहे हो। अदर देन दैट मैं और भी क्या कहूँगा कि आप जो है ना उसको न्यूज़पेपर से भी आप वैल्यू ऐड करो। मतलब व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जैसे अगर मानो एथिक्स है, ठीक है, तो एथिक्स है तो मैंने अगर एथिक्स से मेरा बेस मटेरियल तैयार हो गया, मैंने जैसे अपने तो विजन आए से मैंने सारथी से किया था, ठीक है, सारथी से मेरे पास बेस मटेरियल था मेरा एथिक्स का। उसके बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, न्यूज़पेपर में डेली जो मुझे कुछ चीज़ें लगती थी कि अच्छा ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, इसको मैं इंटीग्रिटी के एग्जाम्पल में यूज़ कर सकता हूँ। नेसेसरी नहीं है कि आप जो है कोई भी जो भी आप अगर एग्जाम्पल लिख रहे हो तो किसी ब्यूरोक्रेट से रिलेटेड ही होना चाहिए, वो किसी भी इंसान से, कोई सिटीजन से रिलेटेड भी हो सकता है कि अगर उसने कुछ अच्छा काम किया है दैट अपहोल्ड्स इंटीग्रिटी, तो मे बी दैट ऑल्सो यू कैन कोट इन एग्जाम। तो आप जो आपने वैल्यू एडिशन किया है, द वैल्यू एडेड मटेरियल दैट यू यूज, दैट्स अ गुड थिंग। अदर देन दैट यू कैन आल्सो रेफर टू सोनिया का वैल्यू एडेड मटेरियल, दैट आल्सो यू कैन रेफर टू। अदर देन दैट न्यूज़पेपर डेली पढ़ के आप उसको भी अपने वैल्यू एडिशन में डालो मेंस के, बिकॉज दैट हेल्प्स, वो एज देगा आपको मेंस में मार्क्स लाने के लिए। तो सर आपने मेंस का टेस्ट सीरीज कौन सा था सर? आपने सारे से आप लोग ट्राई करें कि सिर्फ इंटरव्यू से रिलेटेड सवाल पूछा जाए RCA के, प्लीज। Sir, can I ask question? Yes, please go ahead here.
सर फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम इस बार You're not audible, Ria. Your voice is cracking. I can't hear you. हेलो। Hello. Yeah, Ria. Please. तो मैं न्यू हूँ, मैं अगले साल ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो मेरा जो ऑप्शनल है वो PSIR है, बट मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी पॉलिटिकल साइंस ही था। अब मैं मतलब मेरा जो सिटी और मेरे जो कॉलेज है वहाँ पे मतलब इतनी अच्छे से तो नहीं होती, तो पॉलिटिकल साइंस मेरे उतने अच्छे से कवर नहीं है, और PSIR मेरा ऑप्शनल है। तो क्या वो मुझसे क्वेश्चन PSIR में बहुत ज्यादा पूछेंगे, क्योंकि अभी PSIR मेरा The कंप्लीट thing नहीं is, हुआ है। as I said that since your option is PSIR, so international relations को आप अच्छे से करो, ठीक है? सर मतलब जो भी इश्यूज अभी करंट में चल रहे हैं उन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है? तो सर मैं उसमें मतलब हाँ बोलो। मैं ना मतलब मेरा इंग्लिश उतना फ्लुएंट नहीं है, बोलते बोलते मैं हिंदी में कभी कभी स्विच कर जाती हूँ, और इंग्लिश में आने का थोड़ा हैबिट है। तो वहाँ पे मैं पहले ही हिंदी से ही शुरू करूँ, या फिर मैं इंग्लिश हिंदी कर सकती हूँ? ये ऑड नहीं लगेगा? देखो, द थिंग इज एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, इफ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश तो कंटिन्यू इन इंग्लिश ओनली, और इफ यू आर स्पीकिंग इन हिंदी देन स्पीक इन हिंदी ओनली, ओके? तो मतलब ये थोड़ा ऐसे कोड स्विचिंग डजंट साउंड गुड थोड़ा, बिकॉज इट्स अ फॉर्मल इंटरव्यू, तो वो थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है। और मे बी इफ यू वांट टू स्पीक इन हिंदी, सो पहले टेक परमिशन के सर और मैम कैन आई स्पीक इन हिंदी, एंड इफ दे अलाउ देन ओके, उसके बाद ही। ओके सर। There are a few questions in chat box also. Jaya says, congratulations sir for your selection. Thanks sir for your insights. Can we give our interview in bilingual? As I've already mentioned this, Jaya. So if you want to speak in Hindi, so first take permission and then speak in Hindi. Okay. How many board members are there in RCA interview panel? There are hardly, I guess, there are 3 or 4 members. तो एक तो chairperson तो प्रोफेसर इंचार्ज ही होंगी, उनके अलावा भी 3 या 4 मेंबर होते हैं। What original documents do we need to carry? Anshika, I don't know about this. वो तो आपको खुद RC वाले बता देंगे, आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हो। What is the average monthly cost if we stay at RC? See, Srishti, it is actually your 3,500. That's what it costs you. इसमें से 2,500 आपका मेस का होता है, और 1,000 जो है वो आपका मेंटेनेंस होता है। तो वो मेंटेनेंस आपको मतलब एज इन अपफ्रंट 6 महीने का पहले ही देना होता है, तो वो 2,500 ही फिर आपको पर मंथ देना है। I'm writing mains this year. Can there be any question on this? Any question on what? Issue on what? For example, you are talking about the valuation should be maintained online or offline. See, Jaya, आप कैसे भी कर सकते हो, maybe online or offline. Since मैं अपने जो मतलब as in मैं hard copy ही रखता हूँ notes के, तो mostly मैं उनको offline ऐड करने की कोशिश करता था, but mostly तो कई बार online भी रखता था, तो फिर उनको बाद में club कर लेता था। तो आप दोनों कर सकते हो। What about medical option? What kind of questions can we expect? So maybe something that is regarding your field, or something that is very मतलब बहुत ज़्यादा curious लोग होते हैं mostly, जैसे antimicrobial resistance वगैरह के बारे में, that maybe they can ask that, क्योंकि डॉक्टर्स तो होंगे नहीं बोर्ड में, तो they won't ऐसे कुछ इतने ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे वो। How would RCA benefit us? Can you tell some insider things, because I'm not aware of that. Don't have complete clarity. See, I'll tell you this. How can RCA benefit you? मैं अपने personally अपने बारे में बात करता हूँ पहले. I'll talk about my journey. Right. So I graduated in 2022, और उसके बाद I applied, ठीक है, 23 में I applied, तो मेरा नहीं हुआ। फिर जब 24 में हुआ था, तो मैंने मेंस लिखकर फिर मैं RCA गया था। मैंने फॉरेस्ट सर्विस का मेंस लिखा था RCA से, तो जो मैंने 2 मेंस लिखे हैं RCA से, फॉरेस्ट सर्विस का लिखा है, एक CSC का लिखा है, और मेरे दोनों मेंस निकले हैं। तो बिकॉज द एटमॉस्फेयर दैट यू गेट, द गाइडेंस दैट यू गेट, क्योंकि द थिंग इज कि आप इट रियली मैटर्स कि आप अपने आप को किस तरीके के लोगों के साथ सराउंड करते हो, ठीक है? तो इफ यू आर विद अ लॉट जो बहुत एम्बिशियस है, तो वो भी आपको पुश करता है टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो मुझे लगता है RCA वो एटमॉस्फेयर आपको प्रोवाइड करता है। अदर देन दैट क्या होता है कि पीयर लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस एग्जाम में, दैट आई रियलाइज। तो RCA जो है वो आपको पीयर लर्निंग का सपोर्ट देता है पूरा। जब मैं मेंस लिख रहा था 2025 वाला, तो एक इन हाउस टेस्ट सीरीज होती है RCA के अंदर ही, उसमें वो मोस्टली PYQs होते हैं, फिर कुछ और कोचिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होते हैं, उससे रिलेटेड SLTs होते हैं। तो हमारे वहाँ पर ना RCA में देयर इज अ पर्सन हु इज सिलेक्टेड नाउ, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में है, वो उस वक्त एकेडमिक लीड थे। तो
उन्होंने मुझे अपने उसमें बुलाया, केबिन में बुलाया, मेरा पेपर सामने रखा और उन्होंने मुझसे बोला कि अगर तुम ऐसे लिखोगे तो तुम्हें जीएस में 450 मार्क्स आएंगे, है ना, 450 मार्क्स आएंगे। अगर तुम ऐसा लिखोगे तो तुम्हें जीएस में 450 मार्क्स आएंगे। एंड आई एंडेड अप गेटिंग 425। तो मतलब उनको इतना एक्सपीरियंस है कि ही नोज कि मैं कहाँ पर सही जा रहा हूँ, कहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, एंड व्हाट आई शुड एक्चुअली डू। तो वो मुझे लगता है आरसीए वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। उसके बाद दे टेक केयर ऑफ यू अच्छे से, मतलब जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नीड्स हैं वो आप पूरी करते हैं। तो मेरा जब इंटरव्यू था तो मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा जल्दी आ गया। पहली बार ऐसा हुआ कि यूपीएससी ने, यूजुअली यूपीएससी 2 वीक्स का टाइम देती है इंटरव्यू के लिए, पहली बार ऐसा हुआ कि यूपीएससी ने सिर्फ 5 दिन का टाइम दिया इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और मेरा इंटरव्यू दूसरे दिन ही था, तो आई हार्डली हैड 5 डेज। उस 5 दिनों में भी जो आरसी है उसने कोशिश किया, पैनल बुलाया, मॉक इंटरव्यू लिए, 1-2 दफ़ा मॉक इंटरव्यू भी हो गए। तो 5 दिन के अंदर ही उन्होंने बहुत कोशिश की। अब वो भी क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा लेट होता मेरा इंटरव्यू तो माय रैंक वुड हैव बीन बेटर। अभी 415 है और अच्छी हो सकती थी, बट ठीक है, दैट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। बट द थिंग इज कि आरसी रियली सपोर्ट्स यू। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जाओ आरसी जाने की कोशिश करो। आरसी में आपको एटमॉस्फेयर सच में अच्छा मिलेगा और मेरे लिए तो आरसी हैव बीन वेरी नाइस। माय ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फ्रॉम ओके सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं तो जैसे आपका सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसी कौन सी टॉपर्स की क्वालिटीज हैं जो होनी चाहिए बच्चे में, तो तभी उसका जो है मतलब सिलेक्शन होता है, भले ही वो आरसी में हो या ना हो। तो वो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज बता दीजिए जो हमें करनी ही करनी है, चाहे तुम कहीं से भी पढ़ो। See, this exam is the exam of hard work, okay? तो हार्ड वर्क करोगे आप, उसके बाद भी आपको फेलियर मिलेगा इस एग्जाम में, ओके? तो वहां पर रेजिलियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हेन यू फॉल यू हैव टू गेट अप, ठीक है लाइबा? तो बहुत बार होगा ऐसा कि आपने अपना 100% दिया, फेल हो गए, नहीं हुआ, प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, या हो गया मेंस नहीं हुआ, इंटरव्यू कॉल आ गया, इंटरव्यू हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, यू अगेन हैव टू गेट अप। तो वो जो रेजिलियंस है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रेजिलियंस के बाद भी उसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है वो जो 2 क्वालिटीज है ना, एक तो यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, दूसरा यू हैव टू बी रेजिलियंट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज इंपॉर्टेंट दैट विल हेल्प यू क्रैक दिस एग्जाम। या सो आई गेस कुछ मोहम्मद राशिद। सो राशिद यू कैन आस्क क्वेश्चन, आपने हैंड रेज किया है। Okay, I guess Rashid is not here. So, Anushka, maybe you can go ahead. Hello, good evening, sir. Yeah, good evening. Sir, right now I am pursuing masters from Delhi University in political science. So, sir, how Right. should I put it in front of the panel, because they'll be wondering like how will I manage both, since I do not. It's quite flexible. Is it like a Prepare for full time examinations. thing? As in you are you are doing it full time or what? No, sir. I'm a regular student, but I'm doing self-studying only for like exams and all, and I just go and appear for the examinations. I just wanted to like not have a break in my academic journey, so that's why I enrolled. So how See, should I put it? You don't have to put it in front of the board, okay? Because a lot of students, they pursue their masters and all. So mostly we also pursue, like I pursued it, but I did from IGNOU. So you don't actually have to put it in front of the board. If the board asks you explicitly, तो आप बोल सकते हो कि maybe I'm doing it from distance, because जामिया में it is not allowed ना कि आप full time नहीं कर सकते. If you are actually a part of RCA, तो you cannot pursue a course full time कहीं पर भी. तो don't put it in front of the board. Okay, sir. So I should just mention about bachelor's. That's it. Right? That's it. If you have not mentioned about your masters अपने उसमें draft में application जो भी उन्होंने पूछा है आपसे, तो don't mention about your masters. Okay, sir. Yeah. Okay, Rajat, please go ahead. यस सर, थैंक यू सर। सर मैंने अभी 2 दिन पहले हमदर्द का भी इंटरव्यू दिया था। Okay. तो HSC का? यस सर। अच्छा सर तो मैं इलाहाबाद का हूँ, तो सर उन्होंने पहला ही क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आप मतलब इलाहाबाद से हो तो आप वहाँ के कोई लैंडमार्क्स इवेंट बताओ। तो मतलब मैं थोड़ा सा सर सुनने में मुझसे गलती हुई और मैंने उसे लैंडमार्क समझा, तो फिर मैंने यहाँ की 2-3 मॉन्यूमेंट्स बता दी। उसके बाद ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मुझसे। उसके बाद सर मैं थोड़ा मतलब स्टैमर करने लगा बीच बीच में, मतलब फ्लो ऊपर नीचे वो एक कंसिस्टेंट नहीं था। तो सर इसको थोड़ा सा ओवरकम
कैसे किया जाए। और मतलब वो मेरा पहला इंटरव्यू था हमदर्द वाला अभी तक, और ये अभी सेकंड होगा, तो सर इस पे थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ना रजत के अभी आपको ना एक यू हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर, जो वो आपसे पूछ रहे हैं बी वेरी क्लियर। ठीक है, तो जैसे आप बोल रहे हो ना कि जैसे जो ये कुछ ऐसी मतलब एज इन मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा मॉक इंटरव्यू था फॉरेस्ट सर्विस का पहला मॉक इंटरव्यू था। मैं गया था यहाँ शंकर आईएएस में मॉक इंटरव्यू देने। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे ही उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और मैं उसको सुन नहीं पाया, और जो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था आई थिंक मे बी ही आस्क्ड मी कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन या कुछ, मैंने सुना कि व्हाट इज पोल्यूशन, सो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज पोल्यूशन, देन ही स्टॉप्ड मी, बीच में रोक के मुझसे बोल रहे हैं कि क्या पूछा है मैंने, तो मैंने कहा सर मे बी यू आस्क्ड व्हाट इज पोल्यूशन, सर नो आई आस्क्ड द पैरामीटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इट इज नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल, कोई बात नहीं होता है। उसके बाद फिर आप ऑब्वियसली आप स्टैमर करते हो, कॉन्फिडेंस नीचे जाता है, बट द थिंग इज कि यू हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, अपने आप को काम रखो वहां पर, और जो बाकी आगे क्वेश्चन हैं उनको आप जो है अच्छे से एड्रेस करो, क्योंकि ठीक है इंसान ही है यार, गलती हो जाती है, हो गई, कोई बात नहीं। Just be very confident, and if you know about some, if you don't know anything तो कह दो कि I don't know, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो बोल दो कि सर I don't know, I'll read about it, और अगर आपको पता है तो go for it। और अगर सुनाई नहीं दिया है तो maybe you can ask them again कि सर I beg your pardon, can you please repeat it, तो that can also help। यस सर, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है हाँ सर, जैसे मेरा ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से हुआ है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, okay। तो सर जैसे इसका कुछ एडवांटेज मिलता है या फिर नहीं। और मैंने एक बार अभी लास्ट ईयर मतलब इसी साल जो 2025 का यूपी पीसीएस था उसका मैंने मेंस भी लिखा है, तो सर इसका कुछ मतलब वेटेज एक्स्ट्रा मिलता है या फिर नहीं? उसका तो कोई वेटेज नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, आज इन वो तो पूरा मेरिट के बेसिस पर ही जो एडमिशन हो रहा है। तो मे भी हो सकता है कि दे आस्क यू अबाउट हिंदू कॉलेज, उसके हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, कुछ डिस्कशन हो सकता है उससे रिलेटेड, तो मे बी वो आप देख लेना, है ना। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैन आई आस्क? या हेलो। हाँ प्लीज, सुलेमान राइट? यस सर। हाँ सर एक्चुअली मैं अभी अतिया में रह रहा हूँ, अतिया फाउंडेशन में सर। मुझे अगर वो, यस सर, द्वारका में। अच्छा, तो सर अभी अगर वो कोच मतलब इस तरीके से पूछेगी कि अभी किसी कोचिंग में हो या फिर कोचिंग का पूछे, तो फिर मुझे क्या उनका जवाब देना बताना चाहिए कि मैं अतिया में हूँ? नहीं मत बोलना, आप नहीं बोलना कि आप अतिया में हो, ठीक है? यस सर। क्योंकि अभी अतिया का तो आई गेस एंट्रेंस भी अभी हुआ था कुछ दिन पहले। यस सर, अभी हुआ है 12th को। Okay, Rashid, please go ahead. Sir, I have a question. Rashid? I don't know यार, Rashid है नहीं तो ठीक है। रिया, please go ahead. So in my DIF, I have mentioned that I already passed graduation, but I will pass graduation in this year only, and अभी तक मेरा 6 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ नहीं है। तो अगर वो लोग मुझसे पूछते हैं तो फिर मैं क्या बोलूंगी, या फिर मैं उनको बोल दूंगी कि DIF में मुझसे गलती हुई है। 6 सेमेस्टर का एग्जाम कब है आपका? क्योंकि आई गेस वो तो आपसे वो मांगेंगे ही ना, पासिंग आउट सर्टिफिकेट वगैरह तो मांगेंगे। अभी 1 वीक के बाद शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मतलब आप मैं बोल सकते हो उसको, क्या आप बोल देना, क्योंकि अभी जो आपका स्टार्ट होगा तो वो तो सेशन जो स्टार्ट होता है वो मोस्टली सितंबर के अराउंड स्टार्ट होगा, तब तक तो आपके हो जाएगी ग्रेजुएशन कंप्लीट। तो आप बोल देना उनसे कि फाइनल ईयर में हूँ और अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो बस खत्म होने वाले हैं। देते हैं। ओके, कैकशा? Yes sir, good evening. गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स रहा है, बट फिर मैंने मास्टर्स फिलोसफी में किया है आफ्टर 2 year गैप, क्योंकि मैं उस दौरान प्रिपरेशन कर रही थी और मेरे 4 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट इवन क्लियर प्रीलिम्स, क्योंकि मेरा मेंस पे ज्यादा फोकस रहा है। तो व्हाट क्वेश्चन शुड आई एक्सपेक्ट? व्हाट इज योर ऑप्शन? फिलोसफी। Philosophy is the option. So optional से philosophy से related they can ask questions. Other than that वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपके पास जो attempts हैं उसमें क्या problem है, ठीक है? तो just be very clear कि क्या रहा problem, okay? तो उसमें कुछ इतना issue नहीं होगा। ओके, तो इससे सर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा बिकॉज प्रीलिम्स नहीं हो पाया तो इन केस?
See, the thing is, the problem with this exam is that it has become very absurd, right? So usme Actually. even after preparing everything, even after doing everything, there are chances that you might not do it. But if they see potential in you, that you have it in you, you have the potential in you, so definitely they will. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका क्योंकि सर मेरा एक्चुअली सेल्फ प्रिपरेशन ही रहा है, मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया है जो भी किया है, नो कोचिंग्स एक्चुअली, इसीलिए। और मेरा हज कमेटी का भी है मतलब इंटरव्यू अभी, तो उसके बारे में मुझे मेंशन करना चाहिए? नहीं, डोंट मेंशन, वो पूछेंगे भी नहीं आपसे। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ प्लीज राशिद। सर मेरा सवाल ये था कि आरसीए में जाने के बाद वहाँ पे प्रॉपर क्लास चलती हैं सारे सब्जेक्ट की, या क्या वहाँ होता है आरसीए ज्वाइन करने के बाद? क्लासेस नहीं होती हैं। क्लासेस आपको मतलब मोस्टली लेक्चर्स वगैरह हो सकता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग हो सकते हैं, आंसर राइटिंग से रिगार्डिंग हो सकते हैं, या एथिक्स से रिगार्डिंग हो सकते हैं, सीसैट से रिगार्डिंग क्लासेस होती हैं। वैसे इन जनरल कोई पूरी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस नहीं होती है, मोस्टली सेल्फ स्टडी ही है। बट लोग आते हैं पीयर ग्रुप के लिए, या फिर जैसे कई लोग हैं जो दिल्ली में नहीं होते, दिल्ली बेस्ड नहीं होते, मोस्टली बाहर से आते हैं, तो इट कैन हेल्प देम, क्योंकि वो फाइनेंशियल इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, नेटवर्किंग अच्छी हो जाती है, तो यू गेट अ वेरी गुड एनवायरमेंट देयर, तो इसलिए आते हैं लोग ज़्यादा। क्लासेस नहीं होती है वहाँ पे, ऐसे रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं, बाकी टॉपिक मतलब ऐसे लेक्चर्स वगैरह हो जाते हैं। जी सर, मेरा यही क्वेश्चन था, जैसे हम आंसर राइटिंग करेंगे वहाँ पे, तो कोई हमें फैकल्टी मिलेगी कि जो चेक करके बताएंगी? हाँ, मतलब जैसे आपके इन हाउस टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट, जैसे आप एंट्रेंस अभी होगा, एंट्रेंस होने के बाद फिर आपका इन हाउस टेस्ट सीरीज मेंस ही स्टार्ट होगा वहाँ पर आरसीए में, आपका सीधा मेंस ही टेस्ट स्टार्ट होगा। जब मेंस टेस्ट स्टार्ट होगा तो आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली मेंस के सारे क्वेश्चंस होंगे, सब टेस्ट होंगे, और आपको मॉडल आंसर वगैरह मिलेंगे। और जो इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन वो सिलेक्टेड लोग करते हैं, जो आरसीए से अभी सिलेक्टेड लोग हैं, या फिर जो इंटरव्यू अपेयर्ड है हु डिड नॉट मतलब गिव दिस टाइम, तो वो लोग ही इवैल्यूएट करते हैं, या फिर जिन्होंने अभी मेंस लिखा है या फिर पहले इंटरव्यू दिया है वो। तो मतलब एक बहुत ऐसे नहीं होता कि जैसे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवाया, फोरम वगैरह में करवाया, तो आपको पता ही नहीं कि किसने आपकी कॉपी जो है इवैल्यूएट की है। यहाँ पर आपको पता होता है किसने इवैल्यूएट की है, और फिर वो आपको कुछ ऐसे इनफॉर्मल इनसाइट्स भी आके दे सकता है कि आप यहाँ पर अच्छा कर रहे हो, यहाँ पर खराब कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरा जो एकेडमिक लीड थे, उन्होंने मुझे बुला के बोला, अपने केबिन में बुला के बोला कि ऐसे लिखोगे तुम्हें 450 मार्क्स आएंगे। और जी सर, वो एक अच्छा एक वो इनफॉर्मल बॉन्ड बन जाता है। सर एक और लास्ट क्वेश्चन था मेरा। प्लीज सर, जैसे आरसीए क्लियर हो जाता है तो वहाँ पे रहने के लिए कुछ मतलब फिर से मतलब कुछ भरना पड़ेगा फॉर्म, या तो बताना पड़ेगा कि हम रहना चाहते हैं, कि रहने के अलाउ कर देते हैं? वो तो है ही ना, वो तो रहना ही पड़ेगा आपको। मतलब वो तो क्या है, वो तो रेजिडेंशियल कोचिंग है ना, तो आपको रहना ही पड़ेगा, आपको हॉस्टल अलॉट होगा। जी सर, कहीं ऐसा हो कि आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप अपने घर से कंटिन्यू कर सकते हो, अगर हम चाहें तो रह सकते हैं, अलाउ करेंगे ना? हाँ, आप कर सकते हो इनफॉर्मली, बिल्कुल। अपने घर से आप अप डाउन कर सकते हो, कोई इतना मसला नहीं होगा। जी सर, थैंक यू सर। ओके, मोहम्मद फारूक शेख। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ। सर इस साल ना मेरा मैंने जामिया का दिया था, मेरा अभी जस्ट ही ग्रेजुएशन हो गया सर इस साल। मैंने जामिया का दिया था, तो जीएस में मार्क्स अच्छे आए सर, बट तो जो एसए रहता उसमें कम आए। फिर भी इंटरव्यू कॉल आया सर मुझे, बट मैंने इससे पहले एक भी इंटरव्यू नहीं दिया सर, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मुझे। ओके सर, मुझे मालूम है सर कि एसए में मुझे मार्क्स कम है, मैं सिर्फ जीएस के बेस पे हो गया है मेरा सिलेक्शन। अभी रैंक चाहिए तो इसमें इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स चाहिए सर। ओके, देखो पहली बात तो वो आपकी रैंक नहीं है, वो तो सीरियल वाइज उन्होंने दिया है, ठीक है। तो वो मतलब जो भी आपका रिजल्ट आया है वो रैंक नहीं है, वो सीरियल वाइज उन्होंने दिया है। तो अभी तो नोबडी नोज कि किसकी क्या रैंक है। जब मेरिट लिस्ट आएगी तो वो ऊपर से नीचे जैसे जा रहा है, वो जो सीरियल वाइज आपको लग रहा है वही रैंक है। दूसरी बात, मैंने मतलब जैसे पूरे उसमें आपको बताया कि डूज एंड डोंट्स मैंने आपको बताया, बट एट द सेम टाइम बी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड एट द सेम टाइम क्या करना है आपको कि इफ यू नो समथिंग से इट, इफ यू डोंट नो एनीथिंग तो बोलो, क्लियरली बोलो कि सर आई डोंट नो, या मे बी आई विल लर्न अबाउट इट एंड आई विल लेट यू नो। क्योंकि अभी तो हम सीख ही रहे हैं ना, तभी तो हम आ रहे हैं आरसीए के, हम तभी तो यूपीएससी निकालेंगे। अगर निकाल लिया होता तो फिर आरसीए क्यों आते? तो अभी तो सीख ही रहे हैं। जस्ट बी वेरी क्लियर इन दैट, ओके, एंड बी कॉन्फिडेंट।
ओके सर, मैंने ना कोचिंग भी की हुई है, मैंने फिजिक्स वाले से कोचिंग की है, तो ये चीज मैंने जब फॉर्म भरा था ना सर आरसीए का, उसमें मेंशन नहीं किया था। हाँ इन केस उन्होंने पूछे तो बताना चाहिए क्या सर कि मैंने यहाँ से कोचिंग की है? नहीं नहीं, कोई जरूरत, वो पूछेंगे भी नहीं, कोचिंग तो करते ही है ना, मतलब एज इन कहीं ना कहीं से तो फाउंडेशन करोगे ही ना आप। से कोई सेल्फ स्टडी करता है, कोई कोचिंग करता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछेंगे भी नहीं वो आपको, सो यू डोंट हैव टू मेंशन। हेलो सर, थैंक यू। ओके, हाँ अदिति प्लीज। Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, Aditi. Sir, my optional subject is economics, and I have done my graduation in economics only. But there are certain parts in GS that I have not covered. So for now, should I focus on the static part that I have not done, or just focus on what I have already done? For the interview you're saying? For the interview, yes, sir. नहीं नहीं, उसके लिए you don't have to worry, मतलब as in the GS का जो static part that you have not covered, don't worry about that. They're not going to ask you about that. यार फिर या तो वो देखो, या तो retired bureaucrats हैं, so bureaucrats का तो the thing is they will ask about international relations or maybe current happening या current affairs वगैरह, या फिर अगर professors हैं तो वो आपके किसी option graduation subject से या option से related they can ask something, ठीक है, that too will be very basic. So other than that, mostly I would say कि you focus on your DAF and you focus on current affairs, ठीक है, that will help you. Sir, actually, I saw some transcripts, and there were some history questions in that, and I'm quite weak in history. See, the thing is, the history question they might have asked, क्योंकि हो सकता है कि जो जिसका भी था वो ट्रांसक्रिप्ट मे बी हो सकता है उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री में हो या उसका ऑप्शनल हिस्ट्री हो, या फिर आउट ऑफ मतलब मे बी हो सकता है कि उस दिन कोई ऐसा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट हो तो उसकी कोई एनिवर्सरी वगैरह हो, तो दैट कुड बी द रीजन. इन जनरल दे वोंट आस्क यू. Okay, sir. Thank you. हेलो सर, एक क्वेश्चन था। हाँ प्लीज राशिद सर, एक ये क्वेश्चन था, अगर हम वहाँ पे रह रहे हैं और हम किसी फैकल्टी से मिलना चाहते हैं तो दिन में कोई ऐसे रहते हैं टीचर जिनसे हम मिल सकते हैं कुछ कंसर्न के लिए? वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाकर बोल सकते हो लोगों से कि मुझे अगर आपको किसी से मिलना है, या फिर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं आप उनसे बोल सकते हो, ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है. जी सर, प्रोफेसर से या टीचर से ऐसे? मैंने बोला ना आपको कि वहाँ पे रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसे प्रोफेशनल मतलब ऐसे कोई प्रोफेसर पर से नहीं होंगे. बट जैसे अगर आपका ऑप्शनल लेट्स से ज्योग्राफी है, तो हो सकता है कि अगर आपको ज्योग्राफी में कोई कंसेप्ट सीखना है या कुछ पढ़ना है, तो आप ज्योग्राफी के एचओडी से जाकर मिल सकते हो, बात कर सकते हो, तो वो आपको आरसी हेल्प कर देगा उसमें, तो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. जी सर. ओके, मन्नान प्लीज गो अहेड. नवीद. सर, ये इंटरव्यू पे कितना डिपेंड होता है सर सिलेक्शन? ऐसे क्योंकि सर सबका ही ऐसे ही गया है सर, और किसी को राइटिंग एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं था, तो सारा ही इंटरव्यू पे सिलेक्शन बेस्ड हो जाता है, या तो फिर जो मेरिट है वही पर रिमेनिंग रहता है? नहीं, मेरिट जो है वो देखो इंटरव्यू पर इतना ज्यादा बेस नहीं है, मोस्टली तो आपके जो रिटर्न है और एज इन जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था और फिर जो ऐसे था उसके बेसिस पर होता है, और फिर इंटरव्यू का कुछ पार्ट होता है. तो इंटरव्यू तो आपको अच्छे से देना ही है. देखो किसी को नहीं पता कितने मार्क्स आए होंगे, क्या आया होगा, किसका ऐसे में कितने आए हैं, कितना नहीं आए, तो डोंट वरी अबाउट दैट. जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते डोंट वरी अबाउट दैट, बट आप अपना वो अच्छा कर सकते हो इंटरव्यू, तो जस्ट फोकस ऑन दैट अभी एज ऑफ नाउ. ओके, सो तनु प्लीज गो अहेड. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Sir, like whether I have to elaborate upon my hobbies while introducing myself, or I should just mention them? See, if you if you want them to talk to you about your hobbies, तो do mention your hobbies. मतलब elaborate तो मत करो, but do talk about them. कि मतलब mention कर दो कि what you actually like to do. फिर अगर वो आपसे पूछते हैं, then definitely elaborate on your hobbies. Sir, जैसे I'm passionate about teaching and I have taught thousands of students on YouTube. So should I mention this thing कि I have already taught so many students on YouTube, or should I just say कि I love teaching? See, when you have mentioned about that you like teaching, so they can definitely ask you about teaching. तो तब you can mention, ठीक है? मतलब let them ask you, okay? Okay, sir. Thank you. Okay, Smruti. Smruti. I guess she's. सर मैं पूछूं क्वेश्चन? हाँ, लाइबा प्लीज. सर हमारा एक क्वेश्चन था कि जैसे ना जो स्मॉल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारा होता है साइंस एंड टेक और डिजास्टर मैनेजमेंट, या
एनवायरनमेंट, और ये GS2 में आ गया गवर्नेंस IR वगैरह। तो इन सबको मेंस के लिए किस तरह से रेडी करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह? मैं आपको बेसिक बताता हूँ, ठीक है, ऊपर से, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। बट आई जस्ट टेल यू वन थिंग कि जैसे अगर इंटरनेशनल रिलेशंस है या फिर आपका इंटरनल सिक्योरिटी है, तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो देयर इज अ बुक, इंटरनल सिक्योरिटी की बुक आती है, ठीक है। आप इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया, उसको आप रेफर कर सकते हो। उसके अलावा जो विजन का जो मटेरियल होता है ना, मींस 365 फॉर इंटरनल सिक्योरिटी फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, दे आर, इट इज एक्चुअली वेरी गुड, तो आप उसको अच्छे से रेफर कर सकती हो। उसके अलावा मैंने कुछ टॉपर्स नोट्स रेफर किए थे, जैसे वसीम भट्ट के नोट्स को मैंने रेफर किया था इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, आप वो देख सकती हो। मतलब खैर ये तो इट कैन बी अ पूरा एक मतलब एज इन इसके ऊपर तो पूरी एक डिस्कशन हो सकती है कि हाउ टू प्रिपेयर दीस टॉपिक्स फॉर मेंस। बट मोस्टली मुझे लगता है कि बेस मटेरियल आप कोई भी एक कोचिंग पर रखो, उसके बाद वैल्यू एडिशन कर लो, ठीक है। सो तनुप्रिया, प्लीज गो अहेड। तो आई थिंक अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेनी चाहिए, काफी टाइम दे चुके हैं शायद आप, और कोई एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल होने चाहिए। ठीक है, कोई भी एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछिए। Quite long, can I ask? हाँ प्लीज। Okay. Sir, I wanted to first ask that you said that you prepared for 2023 and thereafter you cleared you failed 2024 or cleared it? Cleared it, right? No. I failed mains 2024, but I cleared forest service ka mains 2024. Okay, so how did this transition happen? Were you preparing in graduation as well, or it was those 1 year? See, the thing is, I started preparing when I was in the final year of my college. So that was 2021 का almost end. ठीक है, September 21ish I started preparing, and then तो वहाँ से मतलब as in जैसे मैंने बोला that you have to, when you get inside this process, you actually understand कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, and that is the thing is only that you'll only understand once you enter here. तो क्या हुआ कि I knew that there are few areas जहाँ पर which I am actually good at, तो मुझे लगता है कि quite good, तो इसलिए I focus more on that, I capitalize on that, but at the same time जो मुझे लगता है ना कि मेरी weaknesses है वो इतनी ज़्यादा खराब नहीं होनी चाहिए कि मैं मतलब आउट ही हो जाऊँ या मुझे इंटरव्यू कॉल भी ना आए। तो I worked on my weaknesses, तो मैंने अपनी जो मेरी स्ट्रेंथ थी उनको मैंने और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, और जो weaknesses थी उनको उनके ऊपर काम किया कि ताकि वो चीज़ों को खराब ना कर दे। तो that is the thing. So again, after your basic preparation, once you get into the process, you actually understand कि अच्छा कि what you have to do. It's a very strategic exam and it's a game of strategy. So you have to strategize things well. और वो बहुत ज़्यादा subjective होता है. There is no one size fits all approach यहाँ पर. So maybe something that works for me might not work for you, and something that works for you might not work for me. So that you have to understand once you get here. तो मुझे लगता है that helped me in that transition. Okay. Hello, sir. Thank you. Just one more question. Okay. Is the RCA process of interview and UPSC are very similar? Like they can ask basic questions, or do they get into the technicalities of? No. The thing is, as in, देखो RCA वाले doesn't know कि UPSC में क्या पूछ रहे हैं, तो UPSC तो can ask anything also, but then the thing is, it mostly stays around DAF only. तो it is somewhat similar. I don't say that obviously 100% similar नहीं, professors बैठे हैं या फिर retired bureaucrats बैठे हैं यहाँ पर, तो कुछ तो होता ही है, but ऐसे technicalities वगैरह में नहीं जाएंगे. The thing is just अपने DAF को अच्छे से prepare कर लो, आप current affairs वगैरह को prepare कर लो, more than enough. Hello, good evening, sir. Yeah. Okay, कौन with Ganesh or Ishu who is speaking? Sir, I have given 2024 mains, but then I was not able to clear prelims in 2025 and 2026. Okay. So what should I answer when they ask about that? And shall I remember the marks of my mains of both GS and optional? 2024 का नहीं, they won't ask you your marks in that, but see if you like, obviously जैसे मैंने बोला है आपको कि that the paper has become so absurd, तो ज़्यादातर इतना ज़्यादा luck based हो चुका है, तो you can't do anything about that. But then the thing is talk about like कि आपको क्या लगता है कि what actually went wrong in 2025, what went wrong in 2026. Let's talk about that. उसको बारे में आप सोचो कि maybe मतलब for if they ask you, in case if they ask you, तो उनके सामने एक blueprint रखना आप कि आप क्या प्लान कर रहे हो कि how you are aiming to crack 2027. तो आप ये देखना कि मेरी shortcomings 2025 में ये रही थी, 2026 में ये रही थी, now I'm working on them, और 2027 में I'm very optimistic that I'll
be able to clear it. Okay. Okay, thank you, sir. Good evening, sir. Yeah, please. Who Issue. is speaking? Kanishk, I guess. Issue. Okay, issue. Yeah, please. Sir, I have two questions. First of all, sir, I am giving mains this year, so should I reveal that? And second, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, वो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। और उसके बाद आपने मेंस के लिए तो एक वो होता ही है, यहाँ पर आरसी में तो एंट्रेंस होता था मेंस के लिए, तो यू शुड हैव कम टू आरसी, या फिर वो एंट्रेंस दे देते आप तो आपका वैसे ही एडमिशन हो जाता, आपको इस पूरे प्रोसेस से गुजरना ही नहीं पड़ता। okay, sir, I could not attend that. I was out. There's no problem in that. So you mentioned that you are appearing in mains. Okay, that is a good thing. Okay, sir. My next question is, I have corporate experience. Should I also mention that? Maybe you can mention, if for example if they ask you about your qualities, जैसे आपकी leadership वगैरह में, if they ask you about that, so you can mention कि sir I have worked in corporate और वहाँ पर I have learned these things as the leadership qualities. Okay. Okay. Thank you, sir. Right. So I think this is. I think we should wind up. Okay, sir. Shadab. हाँ. Yes, sir. Maybe Thank you, Shadab, for your valuable time. Thank you, everyone. Thanks a lot. Okay, sir. Thank you so much. And best of luck everybody. अच्छे से करना और कोशिश करो कि आप आरसी आ जाओ, फिर आरसी में मिलते हैं. Okay. So can I ask just one last question? Yeah. If you're allowed. Okay. Please. Sir, you said that our session would start from September onwards. Probably it starts from September. Right? Okay. So how should we, what should be our strategy to balance prelims and mains, because I have not cleared 3 in a row and 2 sincere attempts. So I want to balance it. How should I do it? See, the thing is, since you already have experience पहले पास में, तो I would say कि दोनों चीजें करनी है आपको साथ में, ठीक है? Prelims भी करना है और mains भी करना है। तो prelims के लिए you have to solve questions every day. तो मे बी आप किसी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, जैसे मैं इनसाइट्स के क्वेश्चन सॉल्व करता था, हर दिन में वहाँ पे 10 क्वेश्चन आते थे, आई यूज्ड टू सॉल्व देम। उसके अलावा कोई पीवाईक्यूज भी मैं सॉल्व करता था। तो यू हैव टू सॉल्व प्रीलिम्स, मतलब यू हैव टू बी प्रीलिम्स रेडी एज वेल एज मेंस रेडी। तो उसके लिए देखो, द थिंग इज, जो आप स्टैटिक पढ़ रहे हो, जो बेसिक पढ़ रहे हो, दैट इज द सेम फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो जो आपके प्रीलिम्स में जो ऑप्शंस है, वो आपका वैल्यूएशन हो जाता है मेंस में। तो आप दोनों को पढ़ो, दोनों को बैलेंस करो, और एट द सेम टाइम आंसर राइटिंग भी करते रहो, और कुछ जो पीवाईक्यूज हैं वो भी प्रीलिम्स के लिए सॉल्व करते रहो। So when we go for mains, it so happens कि सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो पूरा जीएस नहीं कंप्लीट होगा, पूरा जीएस फोकस करते हैं तो इम्पोर्टेंट सेक्शंस पूरे सब, जैसे इकोनॉमी छूट रहा है, अगर आप केवल जीएस 1 को कंप्लीट करने जा रहे हैं मेंस के हिसाब से, तो क्या होना चाहिए कि पहले मेजर सब्जेक्ट्स कर ले, उसके बाद फिर माइनर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे? नहीं, आप पेपर वाइज ही जाओ, पहले जीएस 1 पूरा कर लो, फिर जीएस 2 पूरा कर लो, फिर जीएस 3 पूरा कर लो, ऐसे करो। Okay, thank you so much, sir. It was a very good insight. Sir, may I ask? हेलो सर, एक लास्ट। हाँ प्लीज नंदिनी। So I have mentioned in my def that my hobby is playing chess. So what can I prepare around it? Should I prepare current affairs? Or I have also seen that people ask about certain moves as such. Okay. See, maybe they can ask you about the international sports event that happen around chess. Maybe they can ask you about that also, and or maybe some basics regarding chess, कि how do you play it, what you learn from it, ठीक है? तो मतलब उसके अराउंड थोड़ा बेसिक they can ask. हेलो सर, एक लास्ट वन लाइनर क्वेश्चन सर, प्लीज। हाँ प्लीज राशिद। सर, आप चूंकि रहे हो दिल्ली, मतलब आरसीए में, तो आपका केवल आरसीए में रहने का खर्च एक लाइन में बता दीजिए सर, कितना है अपना हटा के पर्सनली आरसीए का? आरसीए का मैंने आपको बोला ना कि राशिद 3500 रुपए है पर हर महीने का, 3500 रुपए है। 2500 रुपए मेस का है और 1000 रुपए आपका वो मेंटेनेंस है अकोमोडेशन का। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। फिर आप अच्छे से, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।